इसका बेस्ट है मेरा कैमरा तो यहाँ नहीं है Hello. Hi, Can you introduce yourself? I am Shubha Gupta, and I am an entrepreneur. I have few businesses, and the latest one is into sanitary pads and female hygiene products by the name of Neera by SDG. Okay, nice. What inspired the creation of Neera? So Neera was created keeping hygiene in mind. So in India, we see that hygiene is a very big issue. uh, कितना भी डेवलप हो गए हों फिर भी we can say that 60% of our population doesn't know the meaning of hygiene. And looking at the situation of females in India, जिस तरह से वो अनहाइजीनिक सिचुएशंस में स्पेशली बैकवर्ड एरिया की लेडीज जिस तरह से अनहाइजीनिक सिचुएशंस में रहती हैं, तो वी वांटेड टू क्रिएट अ सैनिटरी पैड विच इज़ अफोर्डेबल, विच इज़ रीजनेबल एंड रीचेबल एज वेल. तो उसको माइंड में रखते हुए वी started a brand called Neera. So that is how we started it. Okay, so can you share the story behind the brand name Neera? So the brand name Neera comes from Neer in Hindi, which means water. Oh, And water is the purest form of element. okay. You know that we have 5 elements, so one of that is water. Yeah. Water is the purest form of element, and same concept with the same mindset. We thought about this name Neera because we wanted to create a very hygienic, uh, in fact I would say actually very hygienic and eco-friendly pads. So that is why we thought about the name Neera say neer say क्लीनलीनेस या सबसे प्योरिटी जिसे बोलते हैं, पानी से ज़्यादा प्योर कुछ भी नहीं है. उससे हमने ड्राइव किया कि हमें भी सैनिटरी पैड्स ऐसे बनाने हैं जो सबसे ज़्यादा प्योर हों, जिसमें कहीं पे भी कोई केमिकल्स या कुछ भी ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा हो जो कि किसी के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाए एट अ लेटर स्टेज. तो इसीलिए हमने प्योरिटी को कॉन्सेप्ट रखते हुए नीरा नाम दिया इसे. Oh, it's actually a very interesting name, Neera. थैंक यू. So, how does Neera stand apart from other personal care brands in the market? As I said that Neera comes from purity, so we tried to use cotton in this. So we are not using any plastic here in Neera. And after researching very well and understanding what should be the best, uh, particles और जो भी रॉ मटेरियल यूज करना चाहिए, सो वी केम टू अ कंक्लूजन दैट कॉटन इज द बेस्ट, harmful nahi hai. So we are making cotton pads, and we are not using any plastic over there. And also our there is one premium range also which is coming with onion chip, जो प्रिवेंट करती है बैड ओडोर को, बैड स्मेल को भी प्रिवेंट करती है. सो टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन हम 100% कॉटन पैड्स बनाने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि एट अ लेटर स्टेज किसी भी फीमेल को कोई भी तरह का ना कैंसर दे ना कोई और बीमारी दे. Nice. What challenges do you face while building the brand? सी चैलेंजेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है. हर चीज़ में चैलेंज है, चाहे ब्रांड बनाना है, चाहे पैसा कमाना है, चाहे गवाना है, एवरीथिंग इज अ चैलेंज. सो या क्रिएटिंग अ ब्रांड came with its own challenges, but yeah, fortunately I had a very great team, so everyone supported. हर किसी ने अपना दिमाग चलाया, हर किसी ने अपने आइडियाज शेयर किए, एंड फाइनली वी वर एबल टू क्रिएट दिस ब्रांड. एंड आई फील कि हमारी क्रिएटिव टीम बहुत ही क्रिएटिव है, कि हमारे डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग इज ऑल्सो इन हाउस. सो सब कुछ हमने इन हाउस ही किया है, एंड दैट इज हाउ इट जस्ट केम अप. Okay. So, do you have a plan to expand into a new categories in the future? Yes, definitely. Looking into the market and whatever other people are offering and what is actually required by the consumer also. So we'll be coming into period panties also, menstrual cups also, and everything will be coming with everything. जो डिमांड है वो तो सप्लाई किया ही जाएगा. So, where do you see Neera in next 5 years? So in next 5 years, definitely I'll be one of the biggest manufacturer of eco-friendly sanitary pads, where females don't have the issue or hassle of how and where to dispose the pad. Instead of disposing it here and there, she can flush it directly.
तो एक जो बहुत बड़ा इशू हम लोग फेस करते हैं हर जगह पे कि इसको कहाँ फेंकें, छुपाएं। एंड डेफिनेटली ये एक एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगा। अगर हम थोड़ा सा प्लास्टिक इधर उधर डिस्पोज ना करें तो हमारे एनवायरनमेंट में भी थोड़ा अननेसेसरी और अनवांटेड प्रोडक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू डू डाउन द लाइन। सो एज अ फीमेल फाउंडर आपको क्या लगता है सोसाइटी का माइंडसेट आज भी वुमेन एंटरप्रेन्योर के लिए चैलेंजिंग है? बिल्कुल है। आज भी वो हमें सीरियसली नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि इनका सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है, तो टाइम पास करने के लिए बैठे हुए हैं। बट मेरा सोचना है कि अगर मैं टाइम पास भी कर रही हूँ तो अगर उसे एक अच्छी तरह से पास करूँ तो वाई नॉट, राइट? सो टाइम पास नहीं है, ये हमारा बिजनेस है। अगर आज हम निकल के घर से आ रहे हैं तो वी आर एक्चुअली सीरियस अबाउट इट। इट इज़ नॉट जस्ट वी आर जस्ट सिटिंग हेयर टू पास अ टाइम। एंड डेफिनेटली ये मेल्स फील कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते, बट येस वी कैन डू मेनी थिंग्स एंड वी कैन डू एवरीथिंग दैट अ मेल कैन डू। एंड लेट देम जस्ट अंडरस्टैंड दैट नॉट टू टेक अस लाइटली, वी आर हियर फॉर सीरियस बिजनेस। Yes. तो एज अ फीमेल फाउंडर क्या कभी आपको इस वजह से आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा? प्रॉब्लम्स कम्स विद लाइफ। तो लाइफ का दूसरा नाम ही प्रॉब्लम है। तो चाहे फीमेल फाउंडर हो या मेल फाउंडर हो, प्रॉब्लम्स तो सभी की लाइफ में रहती हैं। लाइफ चैलेंजिंग है, दैट इज फाइन। बट देन यस, इफ यू हैव अ गोल इन लाइफ, इफ यू आर फोकस्ड, देन सारे challenges ओवरकम हो जाते हैं। So you have to be focused on what you are doing and what you want to do. So Yeah. what you want to achieve is more important than the challenges that comes in, while reaching that stage. That is fine. Okay, thank you so much. Thank you.